So first of all, I want to congratulate Pastor Kash for organizing such an anointed occasion. It's a prayer meeting, and yesterday only I was invited by him. I was I already planned to visit Gurgaon, but I do not know what happened. I felt like that I should come today and I should listen the very powerful and very anointed servant of God who going to share word of God with us. He has come all the way from Lucknow and Patna both. So thank you so very much, Pastor Akash and the Assembly of Believer Church. They have been organizing such beautiful anointed events, and I'm so very fortunate that I keep coming and keep getting something which is growing me spiritually more and more. So thank you so very much for organizing such event and taking pain actually to think about it, because we all need motivation and definitely beautiful sermons by anointed servants of God. Many of you know me, some of you do not know me, but one thing is very common, that we all are human beings and we all are the children of Jesus. Hallelujah. I'm Sanjana Simon. I am a transgender person, and I want to glorify Jesus, who has made me a transgender. For so many years I was in pain. For so many years I was fighting actually. There was always a fight between me and Jesus. Like, why me? Why not my brother? Why not the other person? Why I am, have been made like this? So I was very, very annoyed. But slowly, God revealed His beautiful plans. I taught 12 years in one of the good convent school in Bareilly, that's my hometown. And then God brought me here, and some conditions occurred, and God took me to the transgender people in their dera, in their home, and there I could feel the pain and the loneliness of those people. And let me tell you, my dear friends, my dear brothers and sisters, the pain and the loneliness what they have, we can't even experience a pinch of that. We have parents, we have home, we have our loved ones, we have husband, wife, children, we have hope actually. And what they do not have is hope, love, acceptance. And when I was there, I had this burden in me that what I can do for this community now. So I myself was a part of that. And since I was educated, I was from good family, so I could, easily diagnose some problems, some psychological, aspects of their life. But I understood one thing, that if my Jesus died for everyone, my Jesus died for them too. Hallelujah. मुझे बहुत तकलीफ हुई तब when my brothers, they threw me out from my home and they told me कि अगर तुम चर्च आओगी होम टाउन में बरेली में, अगर तुम चर्च आई तो हम चर्च छोड़ देंगे. And it was like, because they thought of that my going there gonna bring shame and humiliation to them, that they were not ready to actually face. और बहुत हैवी हार्ट के साथ मैंने घर छोड़ दिया. मैं दिल्ली आई, और उस वक्त खुदा ने मेरे को अपने कुछ खादिम लोगों से मिलाया, अपने कुछ ऐसे बच्चों से मिलाया जिन्होंने मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करना शुरू करा, जिन्होंने ये बताना शुरू करा, मुझे विश्वास दिलाना शुरू करा कि परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मीय स्वरूप में बनाया है. हालेलुया. मैं और आप आत्मीय स्वरूप में है, और हमारा को जेंडर कुछ भी हो, हम संतान उसी की हैं. हालेलुया.
ये परमेश्वर की योजना थी कि वो मुझे ट्रांसजेंडर्स के पास में ले गया। आई वर्क 6 months with those transgenders, clapped and backed on the street. कोरोना का टाइम था और बहुत कर्जा चढ़ गया था मेरे ऊपर, मेरा सब गोल्ड ज्वेलरी चला गया था और कोई फैमिली नहीं है, मम्मा डैडी भाई बहन कोई नहीं था पास जो मेरे दर्द को सुन भी सकता। मैं खुद ही रोती थी और खुद ही अपने आप को चुप करा लिया। इससे बड़ी बेबसी क्या होगी? क्या आप रो रहे हैं और आपके पास कंधा नहीं है, कोई एक ऐसा हाथ नहीं है तो ये कहे कि चुप हो जाओ सब कुछ ठीक होगा। तो मैं खुद ही रोती थी और खुद ही पागलों के समान अपने आप को कहती थी सब कुछ ठीक होगा मत रो, कट जाएंगे दिन, इनका कोई मोल नहीं है। पर परमेश्वर के कुछ दास थे जो हमेशा प्रार्थना में लगे रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे। मुझे नहीं पता था कि फॉर मी lot many people in Northeast, in UP, they were praying that God do something. ये भेड़ जो है ये भटकनी नहीं चाहिए, 99 को छोड़ उतर के यार बचा ले, और हालेलुया उसने बचा लिया। मैं 6 महीने वहां पे रही, उसके बाद में मेरे को भारत सरकार मंत्रालय में जॉब मिल गया। मैं भारत सरकार मंत्रालय चली गई। बताना चाहूंगी मैंने मास्टर्स किया कॉमर्स में, मास्टर्स किया इंग्लिश में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएड करा, गोल्ड मेडलिस्ट रही, 12 साल पढ़ाया स्कूल में और फिर भारत सरकार मंत्रालय में संस्कृति मंत्रालय में जॉब करने बैठ गई, बीए टू द डायरेक्टर, बहुत अच्छा केबिन ऑफिस। पर वो 6 महीने जो भीख मांगी थी ना, तो 6 महीने जो रही थी उनके बीच में, तो मुझे पता है कि वो सोने के लिए भी रात में नींद आ जाए उनको, फॉर दैट ओनली वो स्मोक करते थे, वो चरस पीते थे, वो गांजा पीते थे कि वो सो सके। वो सोने के लिए इतना नशा करते थे कि एटलीस्ट तो 5-6 घंटे सो सके। वो किसी भी इंसान के साथ, किसी भी पुरुष के साथ सो जाते हैं सिर्फ ये सोच के कि चलो कुछ पल के लिए सही कोई प्यार तो करे, कुछ पल के लिए सही I can feel that I am loved. Mother Teresa once said, the poorest of poor is lonely, unwanted and unloved. ये जो भूख है ना, ये तोड़ देती है। इस बोझ के साथ में 1 साल मैंने मंत्रालय में जॉब करा और अभी मैंने वहां से रिजाइन कर दिया है। आज 10वां दिन है मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। और मैंने बात को जब भाई से पास्टर आकाश से शेयर करा तो भाई घर आ गए थे मिलने के लिए, अपने साथ में डिनर किया और भाई ने मुझे इतना धीरज दिया, इतना हिम्मत दी कि बहन कुछ बुरा नहीं होगा, तो परमेश्वर के लिए खड़ी हुई हो, सब कुछ छोड़ रही हो, परमेश्वर का कलाम सुनाने जाना चाहती हो ट्रांसजेंडर्स के बीच में, उनको वो उम्मीद और उनको प्यार बताना चाहती हूँ परमेश्वर का, तो कुछ बुरा नहीं होगा। और मैं गवाही देना चाहती हूँ कि 10 दिन हुए हैं, कुछ बुरा नहीं हुआ है, वरन बहुत बहुत अच्छा हुआ है। जिस दिन जॉब छोड़ी उसी दिन मेरा सगा बड़ा भाई जो मुझसे बात नहीं करता था, उसने कहा था कि तुम एक जिंदा लाश के समान घर में घूम रही हो, और जब तक माँ जिंदा है तो हमारा रिश्ता है, माँ के चाहते हम अलग अलग है। वो भाई जैसी जॉब छोड़ी, 31 मई को जॉब छोड़ी, 1 जून को मेरे दरवाजे में था अपने पूरे परिवार के साथ, 4 दिन मेरे साथ हंसी खुशी बिताए हैं, मैंने बहुत एंजॉय किया और मुझे बहुत मोहब्बत के साथ गले लगा के घर वापस गया है। और उसके तुरंत ही बाद अगले दिन परमेश्वर ने मुझे मेरठ सिटी का ट्रिप दिया और हमने कम से कम 7 to 8 कलीसियाओं को विजिट करा, वहां जाकर प्रचार करके आए हैं, फील्ड वर्क करा है, गंगा में गंगा घाट पे जाके बपतिस्मा देके आए, गंगा में पंडित पुजारियों के बीच में बपतिस्मा देके आए हैं। और इतना अद्भुत लगेगा वो, जब पंडित जी जिनको वो आके पूछ रहे थे कि सिस्टर वो कह रहा है, और मैंने परमेश्वर का पाक कलाम पंडित जी को भी सुना दिया कि आपको मोक्ष जो है वो चावल के दाने और कौवे और चिड़िया नहीं देंगी, आपको मोक्ष देगा तो वो सनातनी अखंड परमेश्वर जो आदि और अंत था वो है, वो हमेशा रहेगा, क्योंकि वो मुर्दों की जयवंत हुआ है। आपका कोई भी मुर्दे में जयवंत कभी नहीं हुआ, मृत्यु में जयवंत कभी नहीं हुआ, लोग मरे और मर के ही रह गए, लेकिन मेरा यीशु जान के मरा।
इसलिए मरा ताकि मृत्यु पर जय पा सके। तो वही आपको मोक्ष देगा, नहीं तो आप चले जाएंगे पंडित जी, आपके बच्चे आपके नाम पे चावल निकाल चलेंगे एकादशी में, और वो चावल निकालते निकालते आपके अनाज खत्म हो जाएंगे। लेकिन भला हो मेरा परमेश्वर जो चावलों से और चिड़ियों से और कौवों से नहीं, वह अपने पवित्र लहू से हमें मोक्ष देना चाहता है। और मेरे दांतों तले उंगली दबाने वाली बात है कि वो पंडित जी बोले हालेलुया हालेलुया, he said this actually, आपको रिपीट नहीं करना, बता रही हूँ कि मैंने उससे बोला कि पंडित जी बोलिए हालेलुया, तो he said हालेलुया because I told him कि यही आपको मोक्ष दे सकता है। मैं एक बात और बोल के जल्दी से खत्म करूंगी, I'm very sorry I'm taking much time। आप सब जानते हैं राहब वेश्या कौन है? हमें प्रभु के पास आने से सिर्फ और सिर्फ एक चीज रोकती है, वो है हमारे पाप। जब हम पापी होते हैं, पापी मनुष्य होते हैं, तो हम परमेश्वर से दूर होने की सोचते हैं क्योंकि हमारा दिल नहीं करता है। राहब वेश्या पापी थी, लज्जा से भरी हुई थी, नगर के कोने में रहती थी, और उसको पता था कि राजा ने आज्ञा निकाल दी है कि इन गुप्तचरों की मदद नहीं करनी है, इन गुप्तचरों को नहीं छिपाना है। लेकिन उसने क्या किया? उसने ऐसा कर्म किया जैसे मृत्यु का जोखिम था। हालेलुया। वो मर सकती थी, राजा उसको काट सकता था, कटवा सकता था, लेकिन उसने फिर भी क्या चुना? परमेश्वर की योजना के लिए खड़े रहना। पापिन स्त्री थी, परमेश्वर की योजना के लिए खड़ी हुई, मृत्यु का संकट उसके सर पे था, फिर भी घबराई नहीं। आपके और मेरे कर्म ऐसे होने चाहिए कि अगर तलवार भी रखी हो ना यहाँ पे, फिर भी हम घबराए ना। और यदि हम घबराएंगे नहीं तो यकीन मानिए अगर राहब वेश्या जैसे पापी भी होंगे, ना तो सिर्फ खुद बचेंगे वरन पूरे घराने को बचाएंगे। हालेलुया। और जब सूली पर तो डाकुओं को लगाया गया था, तो एक डाकू ने सारे ही बुरे कर्म करे होंगे, उसने वो सब कुछ किया होगा जो आप और मैं सोचते भी नहीं है, लेकिन उसने क्या किया? विश्वास। एक ने किया कर्म, एक ने किया विश्वास। वो भी पापी, ये भी पापी। और रोमियो 10:11 क्या कहता है? जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है वो लज्जित नहीं होगा। और रोमियो 10:13 कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो उद्धार पाएगा, जो कोई उसके नाम को लेता है वो उद्धार पाएगा। तो यकीन मानिए मेरे भाइयों और बहनों, आपका पाप कैसा भी क्यों ना हो, आपका परमेश्वर यीशु मसीह आपको छुटकारा देना चाहता है, दे चुका है ऑलरेडी। तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इन शब्दों के साथ में। एक बार आपको बहुत सारा आशीर्वाद, प्यार आपके ऊपर खुदा का बहुत सारा फजल हमेशा नाज़िल रहे। आप हमेशा ऐसी खुदा की खिदमत करते रहे। और बहुत अच्छा लग रहा है कि छोटी सी कलीसिया थी और बहुत कम जगह पे हम लोग फर्स्ट टाइम जब आए थे, छोटी सी कलीसिया थी, लेकिन बहुत खूबसूरत और बहुत ताकतवर प्रार्थना योद्धा उस कलीसिया में थे। और ये प्रार्थना योद्धाओं की मेहरबानी है, ये पास्टर साहब की मार्गदर्शन है और परमेश्वर का अनुग्रह है कि कलीसिया इतनी बड़ी है। और मैं विश्वास करती हूँ कि हम लोग बिलीवर चर्च प्रीतमपुरा एक दिन डंका बजाएगी यीशु के नाम का। ऋग्वेद में ये लिखा गया